Now coming to the scheduling criteria. अब जरा scheduling criteria की 5 कसौटियां थी हमारे पास. scheduling criteria के 5 हमारे पास पैरामीटर्स थे, उन पे भी जरा जज कर लेते हैं. हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 41. इसके अंदर अगर हम CPU यूटिलाइजेशन देखें, CPU is utilized for 39 milliseconds and it was not utilized for the 2 milliseconds between time t is equal to 4 and time t is equal to 6. In this duration, CPU was not utilized. In all other durations, CPU was utilized until time t is equal to 41. So considering the first 41 milliseconds, we can say that CPU utilization is 39 divided by 41. अगर हम परसेंटेज में दें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर लें इसको हम, तो हमारे पास CPU यूटिलाइजेशन आ जाती है इस केस के अंदर, which comes out to be just a minute, 39 divided by 41 is equal to 95.1%. So the CPU is utilized in this case between first 41 milliseconds, between first 41 time units. The CPU was utilized and at 95.1% of the time. Coming to the throughput, considering first 41 milliseconds, throughput comes out to be number of processes completed divided by total time. This comes out to be, there are 5 processes that were completed in 41 units of time. That comes out to be around I don't know exactly, around 10 or 12%, 10 or 12.12 or something like that. Let's see. 5 divided by 41. This is equal to 0.122. 0.122. Okay, this comes out to be the throughput in this case. Coming to other parameters, coming to turnaround time. Turnaround time हर प्रोसेस का डिफरेंट होगा. टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है. पहले एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं. एवरेज हम बाद में निकालेंगे, पहले इंडिविजुअल निकाल लेते हैं. इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम हम कहेंगे P1 का टर्न अराउंड टाइम. P1 was submitted in the system at time t is equal to 0 and it completed at time t is equal to 4, right? So P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो था between 0 and 4. तो this comes out to be 4, right? आते हैं P2 पे. P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? P2 came into the system at time t is equal to 6 and it completed its execution at time t is equal to 21, right?
So its turnaround time is 15. अच्छा, आप नोट करें यहाँ पे P1 and P2 both have turnaround times equal to their burst durations. क्योंकि वो जैसे ही सिस्टम में आए उनको फौरन प्रोसेसर मिल गया, ठीक है। P3 पे आते हैं, अब बाकियों के केस देखते हैं। P3 का क्या है टर्न अराउंड टाइम? P3 का टर्न अराउंड टाइम है, इट केम इनटू द सिस्टम एट टाइम t is equal to 9 and it went through the system at time t is equal to 26. यानी सिस्टम से ये थ्रू हुआ टाइम t is equal to 26 में। यहां पे अगर आप देखें at time t is equal to 9 P3 came into the system and at time t is equal to 26 P3 went out of the system. इसका टर्न अराउंड टाइम हुआ 26 minus 9 that is equal to 17. Now consider that in case of P3 the turnaround time is not equal to the burst duration, क्योंकि P3 सिस्टम में आने के बाद आ चुका था टाइम t is equal to 9 पे, लेकिन उसने बहुत वेट किया until टाइम t is equal to 21, उसने वेट किया बीच में, ठीक है। तो हमारे पास P3 का टर्न अराउंड टाइम आ गया 17। इसी तरह हम P4 और P5 का भी टर्न अराउंड टाइम हो सकता है बर्स्ट ड्यूरेशन के इक्वल ना हो। तो देख लेते हैं, P4 हमारे पास सिस्टम में आया था, P4 came into the system at time t is equal to 11 and it went out of the system at time t is equal to 34. So 34 minus 11 that is equal to 23 टर्न अराउंड टाइम आया P4 का, ठीक है ना। और यहाँ पे दोबारा दिखा भी देता हूँ आपको, 34 पे सिस्टम से बाहर गया है, 11 पे सिस्टम के अंदर आया था, तो 34 माइनस 11 हमने किया दैट इज इक्वल टू 23। फिर अब आते हैं लास्ट वाला प्रोसेस हमारा P5। P5 का टर्न अराउंड टाइम जो है दैट इज इक्वल टू, it came into the system at time t is equal to 25 and it went out at time is equal to 41. So it is going to be 41 minus 25 that is equal to 16. तो हमारे पास जो है वो P5 का टर्न अराउंड टाइम आ गया 41 माइनस 25। अब आप ये नोट करें कि इन केस ऑफ P3, P4 एंड P5 टर्न अराउंड टाइम इज नॉट इक्वल टू बर्स्ट ड्यूरेशन, यानी कि P3, P4, P5 को सिस्टम में वेट करना पड़ा है। अगर सिस्टम में वेट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट ड्यूरेशन सेम नहीं होगा, कुछ वेटिंग टाइम भी आएगा। तो अब देखते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम्स आउट टू बी this comes out to be 4 plus 15 plus 17 plus 23 plus 16. This all divided by the number of processes which is equal to 5. So the turnaround time comes out to be 19 plus 17 36, 36 plus 23 59, 59 plus 16 75, that is equal to 75 divided by 5, that is equal to 15. टर्न अराउंड टाइम हमारे पास, एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो 15 आ गया और इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू वेटिंग टाइम। अगेन एवरेज हम बाद में कैलकुलेट करेंगे,
पहले हम इंडिविजुअल वेटिंग टाइम्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल वेटिंग टाइम में पता है P1 जैसे ही सिस्टम में आया, the moment P1 entered into the system, it was given the CPU. So P1 did not have to wait for anything. So waiting time of P1 was equal to 0. Okay. Similarly, P2 came into the system and went to the CPU directly. It did not have to wait into the ready queue. So waiting time of P2 was also 0. P1 and P2 did not have to wait for their turn. अब आते हैं P3 पे। P3 को कितना टाइम वेट करना पड़ा रेडी क्यू के अंदर? P3 came into the system at time t is equal to 9, but he had to wait for the processor until time t is equal to 21. So this comes out to be 21 minus 9, यानी 21 पे उसे प्रोसेसर मिला, उससे पहले उसे रेडी क्यू में वेट करना पड़ा। तो 21 minus 9 that is equal to 12. सिमिलरली अगर हम दोबारा इसको P4 को देखें तो P4 came into the system at time t is equal to 11 and it got the CPU at time t is equal to 26, right? So it is going to be 26 minus 11. That is equal to 15. Similarly P5 का हम निकालते हैं। P5 का जो है वो P5 came into the system at time t is equal to 25 and it got the system at time t is equal to 34. So it is going to be 34 minus 25 that is equal to 9. अच्छा, इसमें एक ट्रिक है। हमने अभी कैलकुलेट तो कर लिया। बेसिकली हमने क्या देखा, we saw that when the process came into the system and when it got the CPU, we got its the difference of both times and we calculated the waiting time. But we can do it another way too. We know turnaround time and we know the burst duration. अगर हम टर्नअराउंड टाइम में से बर्स्ट ड्यूरेशन को माइनस कर दें तो बाकी टाइम वो है जो कि इसने रेडी क्यू में गुजारा है वेटिंग फॉर द सीपीयू। ठीक है, मिसाल के तौर पे टर्नअराउंड टाइम ऑफ P1 is 4 and its burst duration is 4, so waiting time is 0. Similarly for P2, turnaround time is 15 and burst time is 15, so waiting time is 0. For P3, turnaround time is 17 and burst duration is 5, so waiting time is automatically 12. Similarly for P4, turnaround time is 23 and burst time is 8, so waiting time becomes 15 and so on. In case of P5, turnaround time is 16 minus the burst time 7,
वेटिंग टाइम बिकम्स 9। अगर हमें वेटिंग टाइम इस केस में निकालना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ सिंपल काम करें, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट ड्यूरेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाता है। अच्छा, लेकिन इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है, देयर इज अ लिमिटेशन टू दिस ट्रिक, एंड दैट लिमिटेशन इज दैट अभी हम खाली रेडी क्यू की बात कर रहे हैं। देयर इज नो वेटिंग स्टेट इन दिस केस। देयर are no waiting states in these examples. इन एग्जाम्पल्स के अंदर कोई वेटिंग स्टेट नहीं है, तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन एग्जाम्पल्स के अंदर वेटिंग स्टेट हुई तो हम जो है वो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम वेटिंग स्टेट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनपुट और आउटपुट की डिफरेंट चीजें आएंगी, और अगर वेटिंग स्टेट हमने इंट्रोड्यूस की तो फिर हमारा वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का तरीकाकार वही रहेगा जो हमने पहले किया था। मिसाल के तौर पे कि हमने जो है वो 21 में से अराइवल टाइम, जब सीपीयू पे टाइम मिला, इसमें से अराइवल टाइम को माइनस किया और वेटिंग टाइम आ गया। हमने दोनों तरीके बता दिए वेटिंग टाइम निकालने के। एक जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन तरीका ये है कि आप ये देखें कि प्रोसेस को सिस्टम पे जगह कब मिली, प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेस को जगह कब मिली और वो आया कब था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। आपने इसी तरीके से निकालना है कि वो सारी टाइम ड्यूरेशंस जिसके अंदर एक प्रोसेस क्यू में रहा है, रेडी क्यू में रहा है, उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। अच्छा, अब आखिरी चीज है जो कि रिस्पांस टाइम है, वो इसके अंदर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके हमारे पास रीजंस हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहला रिस्पांस इन प्रोसेसेस में से P1, P2, P3, P4 में से पहला रिस्पांस इन्होंने कब दिया है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम ये डिपेंड करता है कोड के ऊपर। ठीक है ना, तो फिलहाल हम इन 4 क्राइटेरिया पे रखेंगे और हम जो है वो आगे चलेंगे। थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वेटिंग टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा आगे जाके अगली जो हमारे पास वीडियोस आएंगी उसके अंदर वेटिंग टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एवरेज निकालनी है तो एवरेज आसान है यहाँ पे निकालना। आपका क्या था, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो बहुत आसान है। ये तो 0 + 0 + 12 + 15 + 15 + 9 और इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो ये बहुत आसानी से आपके पास आ जाता है। 27 + 9 36, 36 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 7.2। 7.2 हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम इस केस में आ गया। ठीक है, so this was first come first serve scheduling along with calculation of all the parameters, all the scheduling criteria.